Hello dear students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, today we will be doing our last topic of the first chapter, the living world, and my topic is taxonomic categories and taxonomic aids. Now what are taxonomic categories? Taxonomic categories are the various ranks in the process of classification. जैसे कि बच्चों हमें पता है क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करना. तो while classification, what are the various ranks? That ranks are known as taxonomic categories. जैसे कि आर्मी केडर में अलग अलग रैंक्स होते हैं, लाइक वी हैव लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल जो है वो आर्मी केडर का हाईएस्ट रैंक होता है. इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी जब हम किसी प्लांट या किसी एनिमल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस टाइम भी देयर आर मेनी रैंक्स, एंड दीज रैंक्स of classification, they are known as taxonomic categories. So today we will be doing in detail these taxonomic categories. So let us study it. Dear students, the various grouping levels or ranks in classification are known as taxonomic categories. There are 7 major or obligate taxonomic categories. The highest one is kingdom. A kingdom includes many phylum. A phylum includes many classes. Then order, family, genus, and species. So the highest taxonomic category is the kingdom, and the lowest taxonomic category is the species. Dear students, these taxonomic categories, they are either arranged in decreasing order or they are arranged in increasing order. This arrangement of taxonomic categories is known as taxonomic hierarchy. This is known as taxonomic hierarchy. And there is one sentence by which you can remember all these taxonomic categories. The sentence is keep pots clean or family gets sick. So K stand for kingdom, P phylum, C class, order, family, genus, and species. So this is one of the simple way of remembering the taxonomic categories. Now the lowest taxonomic category is the species. So what is meant by the term species? Species is a group of individuals which are interbreeding among themselves but reproductively isolated from other such groups. सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं बट बाकियों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं उसको हम कहते हैं स्पीशीज़. ये सबसे लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. और जितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लोअर होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, उसमें उतने ही ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे. और जैसे जैसे हम हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे जो रिजेम्बलेंस है, रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. सो species is followed by genus. Now what is a genus? Genus is a group of related species which has more characters in common as compared to species of other genera. अब एक जीनस के अंदर जो स्पीशीज प्लेस्ड हैं उनके अंदर ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगी एज कम्पेयर टू दी अदर स्पीशीज विच आर प्लेस्ड इन अदर जेनरा. इसमें एग्जाम्पल आता है बच्चों लियो, पार्डस एंड टिग्रिस. These species they belong to common genera which is Panthera. अब नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली. अगर हम जीनस को इकट्ठा कर दें देन दे आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल फैमिली. सो वी कैन से दैट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with less number of similarities as compared to genus. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जैसे जैसे हम हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ जो हैं दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. नेक्स्ट ऑर्डर. ऑर्डर इज़ द assemblage of families which include few similar characters. Next class.
class is a group of related orders, and phylum or division is group of related classes. बच्चों phylum word जो है this is used for animals and division word is used in case of plants, जैसे कि chordata और non-chordata. These are two phylums and both of these phylums they belong to a common kingdom which is the kingdom Animalia. So these are the 7 मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी कहते हैं. इसके अलावा भी बच्चों कई टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जो कि या तो फैमिली के नीचे होंगी या फैमिली से ऊपर, मीन्स इन बिटवीन ऑर्डर एंड फैमिली. अब इन बिटवीन ऑर्डर और फैमिली क्या आ जाएगी, सब ऑर्डर आ जाएगा, या फैमिली के ऊपर आ जाएगा सुपर फैमिली. इसी तरीके से स्पीशीज़ का जो लोअर लेवल है उसको हम क्या कहते हैं, सब स्पीशीज़ वर्ड यूज़ करते हैं. सब स्पीशीज़ बच्चों वर्ड जो है वो यूजुअली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और प्लांट्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वैरायटी. तो जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ प्लांट के केसेस में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की सब स्पीशीज़ के बारे में मेंशन करना है, देन वी यूज़ दी वर्ड वैरायटी. नाउ अब इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों मैंने इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को अरेंज किया है इन एन ऑर्डर, ताकि तुम्हें ये क्लियर हो सके कि किस तरीके से जो स्पीशीज़ हैं दे आर इंक्लूडेड इन वन जीनस, द जीनस दे आर इंक्लूडेड इन वन फैमिली एंड सो ऑन. अब इस डायग्राम में बच्चों देखो ये सभी जो हैं दीज आर दी subspecies of dog like Alsatian, Bulldog, Greyhound, Pekingese and Spaniel. ये सभी subspecies हैं dog की, so they belong to common genus and the genus is what? The genus is Familiaris. इसी तरीके से Familiaris, Lupus and Aureus they belong to common genus and the genus is what? The genus is Canis. Now the genus Canis and the genus Vulpes, it belong to common family and the family is Canidae. अब अगर बच्चों तुम्हें डॉग का कोई साइंटिफिक नेम पूछ ले तो डॉग के नेम में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम में जीनस क्या है, कैनिस, स्पीशीज़ है फेमिलियारिस. तो डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलियारिस. इसी तरीके से वुल्फ का है कैनिस ल्यूपस और जेकाल का है कैनिस ऑरियस. नाउ कैनिस एंड वुल्पस दे बिलोंग टू कॉमन फैमिली कैनिडी. कैनिडी, फेलिडी और अर्सिडी. फेलिडी फैमिली कैट्स, लायन और टाइगर की है. कैट जो है दैट इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली इन विच द लॉयंस एंड टाइगर्स दे आर इंक्लूडेड. अर्सिडी फैमिली जो है वो बियर्स की है. ऑल ऑफ दीज फैमिलीज दे बिलोंग टू कॉमन ऑर्डर एंड द ऑर्डर इज कार्निवोरा. अब देर आर डिफरेंट ऑर्डर्स, कार्निवोरा, चिरोप्टेरा, इसमें बैट्स इंक्लूडेड हैं, रोडेंशिया, रैट्स हैं, सिटेसी, वेल है, प्राइमेटा, मंकी, एप्स और मैन है. नाउ ऑल ऑफ दीज orders they are included in a same class and the class is Mammalia. इसी तरीके से there are many classes like Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia and all of these classes they belong to common phylum. The phylum is Chordata. Now there are two phylums, Chordata and non-Chordata, and they all belong to कॉमन किंगडम विच इज़ द किंगडम एनिमेलिया. तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ जो हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो रही हैं. एंड दीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे आर अरेंज्ड इन एन order either in ascending or descending order and this is known as what? Taxonomic hierarchy. Now students, what is the difference between a taxonomic category and a taxon? Taxonomic category बच्चों एक abstract term है, it represent a rank या level in classification. जबकि taxon जो है that is a real biological object which is assigned to that particular
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो क्लियर करते हैं। नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो रैंक है क्लासिफिकेशन का, और जो ऑर्गेनिज्म उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है दैट इज़ दी टेक्सॉन। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो लिखी गई है ह्यूमन बींग की। ह्यूमन बींग्स जो हैं दे बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस। अब ये जो है बच्चों, ये जो रैंक्स हैं क्लासिफिकेशन के जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए, दीज आर दी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स एक रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। नाउ द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो कि इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग कर रही है दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज taxon. So dear students, this was all about the taxonomic categories. Now friends, let us start the topic taxonomical aids. नाम से क्लियर हो रहा है बच्चों, एड्स मीन्स दी हेल्पर्स विच विल बी हेल्पिंग अस in identification and classification of organisms, that is known as taxonomical aids. Dear students, we have a rich biodiversity. हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की। लाइक वी हैव 1.8 मिलियन स्पीशीज. A number of plants, animals and other organisms, they are used in agriculture, forestry and industry. तो इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है, या हमने इन प्लांट्स या एनिमल्स को जो कि यूज़ किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनको यूज़ करना है. सो वी विल नीड सम एड्स. These aids are known as taxonomical aids. So taxonomical aids जो हैं वो स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, स्पेसिमेंस का, जो कि हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में और उसे क्लासीफाई करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्प प्रोवाइड करता है. And these taxonomical aids, they are of different types like herbarium, botanical gardens, museums, zoological parks, key, flora, manual, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स. तो आज हम ये सभी टेक्सोनॉमिकल एड्स को वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे ताकि हम इन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें. सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड है बच्चों हर्बेरियम. हर्बेरियम जो है वो एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का. हर्बेरियम में हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं और इन प्लांट्स को प्रॉपरली ड्राई करके, प्रेस करके इन्हें शीट्स के ऊपर पेस्ट किया जाता है या सेलो टेप के साथ स्टिक कर दिया जाता है ताकि हम उस पर्टिकुलर प्लांट को प्रिजर्व करके रख सकें फॉर आवर फ्यूचर स्टडीज़. इसी तरीके से डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनको इन हर्बेरियम शीट्स के ऊपर जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है और फिर इन्हें प्रॉपरली जो है वो अरेंज करके रखा जाता है अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो इस तरीके से ये जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं ये एक स्टोर हाउस या रिपोजिटरी बन जाती हैं हमारी फ्यूचर स्टडीज़ की. कल को कोई भी प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो फिर हम अपने उस पर्टिकुलर प्लांट को जो हमने कलेक्ट किया है उसे हर्बेरियम शीट्स में जो कलेक्शंस हैं उसके साथ कंपेयर करके हम अपने उस पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस उसे क्लासीफाई भी कर सकते हैं. यहाँ पे बच्चों एक पिक्चर दिखाई गई है हर्बेरियम शीट की. हर्बेरियम कलेक्शन स्टूडेंट्स तुम खुद भी कर सकते हो. अगर तो प्लांट हर्ब है, स्मॉल साइज्ड है, तो उसे हम पूरा अपरूट कर सकते हैं और उसे प्रेस करके न्यूज़पेपर्स में प्रेस करके प्लस ऊपर थोड़ा बहुत वेट रख के जो है उसे हम ड्राई और प्रेस करके उसे प्रिजर्व किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे बहुत ही देखो सुंदर तरीके से ये एक एक्चुअली ट्री है, तो ट्री में अगर
ट्री है, ट्री को हम पूरा तो अप्रूट कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हम एक छोटा सा पीस जो है वो ब्रांच का ले लेंगे और उसे प्रेस करके रख देंगे इन दी न्यूज़पेपर, ताकि वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए और उसे प्रिजर्व करके रखा जाए। फ्रेश चीज़ों को बच्चों प्रिजर्व करना जो है वो मुश्किल होता है, बिकॉज दे हैव मॉइस्चर कंटेंट जो कि उसे डैमेज कर सकते हैं। सो इसीलिए जो प्लांट मटेरियल्स हैं उन्हें प्रॉपरली ड्राई किया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो एट द टाइम ऑफ देयर कलेक्शन। इसी तरीके से बच्चों ये थूजा प्लांट दिखाया गया है। देखो थूजा प्लांट जो है दिस इज़ अ जिम्नोस्पर्म, और इसके ये फ्लोरल पार्ट्स जो हैं बच्चों, कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कितने क्लियरली जो है विजिबल है ऑन दिस हर्बेरियम शीट, एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। प्रॉपरली जो है नीचे प्लांट का नाम, उसका जो साइंटिफिक नेम है, कलेक्टर नेम है जिसने इसको कलेक्ट किया है, प्लस ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं ऑन दी हर्बेरियम शीट, ताकि जो है इसे एज अ प्रॉपर टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो यूज़ किया जाए। नाउ द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड क्या है बच्चों? बोटैनिकल गार्डन्स। अब हमने देखा कि जो हर्बेरियम शीट्स है वहाँ पे तो हमने जो प्लांट मटेरियल है, डेड प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व करके रखा गया है, बट इन बोटैनिकल गार्डन्स जो हैं हम लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि जो है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपरली की जाए। फेमस जो है बोटैनिकल गार्डन जो है बच्चों, दैट इज़ द क्यू बोटैनिकल गार्डन, दैट इज़ इन इंग्लैंड। बट हमारे इंडिया में भी कई बोटैनिकल गार्डन्स हैं, जिसमें से दो फेमस बोटैनिकल गार्डन्स कौन से हैं? वन इज़ द इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है in Calcutta, and the other is National Botanical Research Institute which is in Lucknow. Let's have a pictures of both of these gardens. बच्चों this is the botanical garden which is in Calcutta. Very beautiful garden, it is having a very beautiful collection of the various types of plants, ताकि हम अपनी जो rich biodiversity है उसको properly study कर सकें। This is also the another view of the botanical garden which is in Calcutta. The next is the botanical garden which is located in Lucknow. This is National Botanical Research Institute which is located in Lucknow, and this botanical garden is also having a very good collection of the rich biodiversity which helps us in the classification and in the identification of the organisms. Next taxonomical aid has students zoological parks. ज़ूलॉजिकल पार्क्स वो प्लेसेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर, एंड उन्हें जो है नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाता है। जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में ये एनिमल्स रहते हैं तो उस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो उन्हें दिया जाता है, ताकि हम प्रॉपरली उनके फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकें। ज़ूलॉजिकल पार्क्स को शॉर्ट फॉर्म में हम ज़ू के नाम से भी मेंशन करते हैं, और वन ऑफ दी nearby zoo which is located in Mohali, that is Chatbir Zoo. You all must have visited there, और अगर नहीं visit किया तो ज़रूर visit करो। That zoo is having a very good collection of the different types of animals, and these animals they are provided their natural habitats, ताकि इन्हें अलग सा महसूस जो है वो ना हो, इन एनिमल्स को ऐसा ना लगे कि वो किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में इनहैबिट कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें पूरी उनकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उन्हें दिया जाता है, ताकि प्रॉपरली हम उन एनिमल्स को स्टडी जो है वो कर सके। इस तरीके से ये पिक्चर दिखाई गई है बच्चों नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में है। बहुत सुंदर है ये ज़ूलॉजिकल पार्क। तो अगर कभी साउथ में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर हैदराबाद में ज़ूलॉजिकल पार्क को विज़िट करना, विच इज़ दी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है बच्चों म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स जो हैं
इवन स्कूल्स और कॉलेजेस में म्यूज़ियम्स रखे गए हैं। हमारे चंडीगढ़ में कई म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है बच्चों प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स की। यहाँ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो लाइव नहीं है, डेड हैं, तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व किया गया है ताकि उन्हें यूज़ किया जाए फॉर द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। अब अलग अलग तरीके हैं इन प्लांट्स या एनिमल्स को प्रिजर्व करने के, तो लेट अस स्टडी द डिफरेंट वेज। एक तरीका होता है बच्चों प्रिजर्व करने का, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स भी, उन्हें लिक्विड सोल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाए इन दी ग्लास जार्स और कंटेनर्स। ये जो प्रिजर्वेटिव होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मलिन प्लस अल्कोहल सोल्यूशन होता है। फॉर्मलिन और अल्कोहल को मिक्स करके प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन तैयार किया जाता है और इसमें वेरियस प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंट्स दे आर preserved. You must have seen these specimens of plants and animals. Like this is an animal specimen which is preserved in a liquid preservative. नेक्स्ट है बच्चों जो स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स को किसी बड़े जार के अंदर प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है, इन्हें छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस के अंदर जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है और बाकायदा जो है छोटी सी इनकी बॉडी को पिनिंग भी की जाती है ताकि ये इंसेक्ट्स जो हैं वो अपनी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टिक रहें और ये विजिबल हो सकें टू दी विजिटर्स। सो इस तरीके से जो स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इंसेक्ट्स, दे आर प्रिजर्व्ड इन स्मॉल इंसेक्ट बॉक्सेस। नाउ जो बर्ड्स हैं या लार्ज जो मैमल्स हैं, इनकी प्रिजर्वेशन जो है वो स्टफिंग के थ्रू की जाती है। जैसे बच्चों ये बर्ड जो है दिखाई गई है, दिस इज़ द फेमस बर्ड ऑफ मॉरिशस विच इज़ द डोडो बर्ड विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट। तो इस बर्ड को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है बच्चों प्रॉपरली स्टफ्ड करके ताकि इसकी जो है स्टडी की जा सके। इसी तरीके से जो स्केलेटन्स होते हैं बच्चों, स्केलेटन्स को भी म्यूज़ियम में प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है और उसे डिस्प्ले करके रखा जाता है फॉर दी टेक्सोनॉमिस्ट एंड फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग दी सब्जेक्ट ऑफ साइंस। नेक्स्ट बच्चों जो लास्ट है, नेक्स्ट जो हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज़ द की एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्प जो है वो प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। की में एक्चुअली बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं और ये स्टेटमेंट्स जो हैं उनके बेसिस पे हम किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स होंगी यूजुअली कैसी होती हैं बच्चों, कंट्रास्टिंग होंगी। जैसे इस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर एब्सेंट हैं तो फिर अगेन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट या एब्सेंट, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाएंगे भी उसके अंदर विंग्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑर्गेनिज्म को, दैट ऑर्गेनिज्म इज़ अ बर्ड। अगर विंग्स उसमें नहीं है तो हम थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे भी उसमें गिल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। सो इस तरीके से 1 बाय 1 जो है वी मूव टू वन एंड दी अदर कैरेक्टर ताकि हम उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर सकें। सो दिस इज़ अ की मतलब ये हमें स्टेटमेंट्स हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्लांट और द एनिमल। नेक्स्ट है बच्चों फ्लोरा। व्हाट इज़ फ्लोरा? फ्लोरा जो है इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा जो है देखा जाए तो एक डिस्क्रिप्शन होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट्स की जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में इनहैबिट कर रहे हैं। तो इससे अगर हमने किसी पर्टिकुलर रीजन, जैसे हमने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है बायोडाइवर्सिटी की, अगर उस पर्टिकुलर एरिया की हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है, वहाँ की प्लांट्स को स्टडी करना है, तो वी कैन रेफर दी फ्लोरा। नेक्स्ट है मैनुअल्स। मैनुअल्स जो हैं बच्चों ये नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड हैं जो कि यूज़फुल होते हैं इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर identification of species found in an area।
किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास मैनुअल्स होते हैं, जैसे लैब मैनुअल्स भी हम प्रैक्टिकल्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो मैनुअल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प देते हैं। नाउ नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिकल एड्स मोनोग्राफ्स। जो मोनो मीन्स वन, तो मोनोग्राफ्स में किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की डीप इंफॉर्मेशन जो है हमें दी जाती है। जैसे यहाँ पे एक मोनोग्राफ दिखाया गया है मेडिसिनल प्लांट्स का, तो इस मोनोग्राफ में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है, ताकि हम मेडिसिनल प्लांट्स को प्रॉपरली स्टडी कर सकें। और लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बच्चों कैटलॉग। कैटलॉग एक लिस्ट है, इट इज़ सिंपली लिस्टिंग ऑफ ऑल दी स्पीशीज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे। जैसे कि हमारी अगर बायोडाइवर्सिटी देखी जाए तो इस टाइम 1.8 मिलियन स्पीशीज़ दे आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो कैटलॉग में इन सभी स्पीशीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्क्राइब किया गया है, ताकि ये हमें हेल्प प्रोवाइड कर सके फॉर आवर taxonomical studies. So dear students, we have done in detailed form the various taxonomical aids with the help of pictures, ताकि तुम्हें ये टॉपिक जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ biological classification. Till then students, thank you.